फिर से चेक कीजिए बच्चे, check it again. Today we are starting with the set part of NTSC in which some mathematical form are used. कौन सा पार्ट बच्चे? set of math. तो हम इसमें जाएंगे and my today's topic is basic algebra. It include all the concept of 8th, 9th as well as 10th. तो ये सबको आपको पता होगा कि हम इसको किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू फाइंड. आप सबको पता है बच्चे रेशो, ए रेशो बी विच कैन बी रिटन एज ए ओवर बी. ओके, अब इसमें एक वर्ड होता है विच इज कॉल्ड डुप्लीकेट. डुप्लीकेट रेशियो मींस बच्चे a square upon b square. यानी if somebody asks you what is the duplicate of a ratio b, so you will write it as a square ratio b square. If somebody asks you triplicate, so this is a cube b cube. यानी इसी रेशियो का, ये कुछ कॉन्सेप्ट आप एक्स्ट्रा से कीजिए. If somebody asks you sub duplicate, under root a, under root b. And if somebody asks you sub triplicate, so this is a power 1 by 3 and b by 1 by 3. Because मैं इन क्वेश्चंस को यूज करूंगा बच्चे, डुप्लीकेटेड, ट्रिप्लीकेटेड, सब डुप्लीकेटेड, सब ट्रिप्लीकेटेड. ओके, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, फॉर्मेशन रहेंगे. अब यू नो इट वेरी वेल, इफ वी हैव अ रेशियो ए रेशियो बी, तो बी रेशियो ए इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल. इसमें कोई दिक्कत नहीं. रेशियो के बाद बच्चे हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. क्या डिफाइन करते हैं हम? प्रोपोर्शंस. व्हेन वी से ए रेशियो बी, C ratio D, it means A over B is equal to C upon B, which is called proportions. और हम ये मानते हैं कि A, B, C, D they are in proportions, और इस proportions को हम ऐसे भी लिख देते हैं AD is equal to BDC. If we cross multiply it, we can write down. बच्चे आज के टॉपिक आपने नोट करने हैं. ओके, I think मैं आपको everything will be provided at the end in the form of PDF, but आपने पहले ये चीजें नोट करनी. Yes, Lakshmi. Sir, is this class recorded? Yes, yes, yes. For the following days also? No, 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 no. For 1 or 2 days only. Okay, sir. A ratio B, C ratio D, and this one. Okay, now the next thing which we are going to find out, continued proportions. Okay, continued proportions means A ratio B, or we can say A over B is equal to B upon C is equal to C upon D is equal to D upon E. This is called continued proportion. Okay, now I am solving some important results of ratios, like check कीजिएगा. Here is an important result. If somebody say A upon B is equal to C upon D, then we can write it as A plus C B plus D. Okay, check it. If somebody given you A upon B is equal to C upon D, so we can write it as B upon A is equal to D upon C, and this process is called invertendo. What we call it? Invertendo.
नेक्स्ट आ जाइए, इफ A अपॉन B is equal to C upon D, and in the next step you can cross it, A upon C is equal to B upon D. You can do it. Okay, this process is called alternando. What we call it? alternando. नेक्स्ट आ जाइए, अभी मैं एक और अच्छा प्रोपोर्शंस करूंगा बच्चे, देखिए क्या होता है। इफ A अपॉन B is equal to C upon D, just add 1 in both the ratios. You will get A plus B upon B and C plus D upon D. This process is called compedendo. What we call it? Compedendo. Now in the next feature, if you subtract A upon B is equal to C upon D. बच्चे next step देखिए, if we subtract 1 from both, then what we call? A minus B upon B, and this is C minus D upon B. This process is called dividend. क्या बोलते हैं बच्चे इसको? Compedendo and dividendo. चेक कीजिए, if I divide both these ratios, first and second, then we got A plus B over A minus B is equal to C plus D over C minus D. This is called C and D, means compedendo and dividendo. And I will tell you कि ये जो मैंने सारे प्रोसेस किए, चेक कीजिएगा अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। A upon B is equal to C upon D is equal to this is equal to this is equal to this, यानी ये चारों की वैल्यू इक्वल ही होती है। We are just doing it for simplification. Got my point? इन चारों की वैल्यू सेम होगी। We are just doing it for simplification. कि सिंप्लीफिकेशन में क्या वैल्यूज होती हैं या किस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। Got my point? तो ये हमारे इस पॉइंट की क्या हो जाएंगी, वैल्यूज होती। यस मुकुल। सर ये कॉम्पेंडेंडो समझ नहीं आया बच्चे कुछ नहीं है, इफ कंपीडेंडो में मींस इफ A plus B A upon B is equal to C upon D is given to you, तो देखो ये दोनों चीजें इक्वल है ना, तो मैंने दोनों में क्या ऐड किया है, जस्ट 1 ऐड किया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंपीडेंडो। और अगर हम माइनस करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंडो, और अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबाइंड वे, कंपीडेंडो एंड डिविडेंडो। अच्छा, आपको लगेगा कि हम इसको कहां पे यूज करते हैं, वी आर यूटिलाइजिंग। ओके, अभी मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो मैं उन क्वेश्चंस में क्या करूंगा, इनको यूटिलाइज करूंगा कि किस तरह से हम इन पे करेंगे। ओके, यस सर। यस सर आप ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पे एक बार आएंगे? सर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू बी, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू डी बाई ई। सर ई कहाँ से आ गया? क्या मतलब? ई ये वाला आपने लिख, यस सर। कहां से आ गया मतलब? सर a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, मतलब a और b के बाद फिर b बाई सी। सर मैं समझ नहीं पाया एक बारी। बच्चे कुछ नहीं है, ये हमारे पास एक टर्म है कि ए बी सी डी एंड ई, हमें कहीं तो रुकना ही होगा ना, तो मैंने ये लिखा है ए अपॉन बी, बी अपॉन सी अपॉन डी एंड डी अपॉन ई। ई पे जाके हम रुक गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब प्रोपोर्शन सर कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। ओके सर। यस अनीशा। सर इन्वर्टेंडो नहीं समझ आया सर। रेसिप्रोकल बोलते हैं हम। यस तो सर। देखो मैंने ए अपॉन बी को सी अपॉन अच्छा। डी किया,
तो दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली ना दे ग्रीक नेम्स हैं, आपको लग रहे होंगे अजीब से, अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपिडेंडो, दे आर ग्रीक नेम्स, ओके, तो दैट्स व्हाई, Okay, sir. ओके। अदरवाइज आप अपने तरह से भी कर सकते हैं, उल्टा करने को हम इन्वर्ट करने को इन्वर्टेंडो बोल देते हैं, अल्टरनेंडो एंड समथिंग, ओके। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा। यस राघव। सर ये जो भी अल्टरनेटिव है ये कैसे हुआ, a by c इक्वल टू b by d? और अगर क्या b a by, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे? यस सर कर दिया। तो मैंने वही तो किया, और क्या है बताओ, इसमें बी और सी को रिप्लेस किया है एक दूसरे की जगह पे। व्हाट इज न्यू इन इट? ओके सर। यस देवादत्त। तो आपने जो इन्वर्टेंडो के ऊपर वाले मेथड किया है उसका भी कोई नाम है? कौन सा, ये वाला? तो कौन? नो सर, उसके ऊपर वाले में a by b is equal to s, a by d, which one you are asking for? a by b is equal to c by d is equal to a plus c by b by d. नहीं, दिस इज सिंपली कॉल्ड प्रोपोर्शंस, इसको हम बाय नेम नहीं याद कर। तो वो नहीं, उसके नीचे ऐसा है, थोड़ा नेट स्लो है तो दिखा ही नहीं मेरा ठीक से। We simply say कि this ratio 1, 2 and 3, they 3 are equal. Okay, now we are coming to next one. अब मैं छोटे से क्वेश्चन शुरू करूंगा बच्चे आपके साथ, थोड़े से क्वेश्चंस अलजेब्रा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले एक बड़े ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस के साथ स्टार्टिंग कर रहा हूं, एंड आई होप सो कि यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन। Check it. And the question is 1 upon, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है बच्चे, x पावर b माइनस ए, x पावर c माइनस ए, 1 अपॉन a माइनस b एंड c माइनस b प्लस 1 अपॉन b minus c and a minus c. He said solve it, and after solving what we will get, a minus 1, b 1, c 0 and d 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट आउट, और देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Check it, how we can write it. No answer check करो बच्चे। We can write it as x power b over x power a, and this one as x power c over x power a। किसी को स्टेप में डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना बच्चे, किसी को इस स्टेप में डाउट हो कि मैंने क्या किया। मैंने ये किया है x पावर b एंड x पावर माइनस a को सेपरेट किया, देन आई राइट x पावर b ओवर x पावर, ये माइनस a को ओवर ले गया, ठीक, तो इट बिकम्स x पावर b ओवर x पावर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सिमिलरली 1 प्लस x पावर a ओवर x पावर b, x power c over x power। Now come on to the next one, 1 upon x power b over x power c। आई थिंक बच्चे ये तो आपको पता चल रहा होगा ना, कि अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना इसको कि हम कैसे करें। ये मैं सिंप्लीफाइड वे में कर रहा हूं, अभी मैंने
इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं आपको बताया। नाउ टेक द एलसीएम। नाउ व्हेन यू विल टेक द एलसीएम यू विल गेट x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c। इसको ऊपर ले जाइए, it becomes x power. Similarly, in the next step, you will get x power b over same term, and similarly, you will get x power c, and over is same term. Now, my next step is x power a plus x power b plus x power c as LCM. And what you will get? X power a, x power b, and x power c. Cancel it out. Your answer will be 1. Okay. And किसी बच्चे ने मेरे पास just 10 सेकंड बाद 0 लिख दिया था। Don't guess the questions. ये आपकी 9th क्लास में आरडी शर्मा में क्वेश्चन है। If you will check it. Okay. Yes, Anish. ओके, नाउ वी कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, जैसे मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इट आउट इन द फॉर्मेशंस। बच्चे पहले मेरे को ना मैसेज सेंड कर दिया करो, ओके, सो दैट वी कैन आई विल अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि व्हाट यू वांट टू आस्क। सी द नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। सेम बुक से एक और रेफरेंस ले रहा हूं, check it. X upon y minus y upon x, y upon z minus z upon y, because we are dealing with z power x minus x upon z divided by 1 upon x square y square, 1 upon y square and z square, and 1 upon z square minus 1 upon x square. Try to solve it out कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। Yes, Lakshit. Sir, in the first sum, last bit, one step, I didn't get it quite. In the last question, Yeah. this last step. Last but one, previous one. Okay, as I said to you, Lakshita, check it. Here we got x plus a, x power b, and x power c, and here we got x power a, x power b, and x power c. Now we will take the LCM of this first, second, and third. We got x power a plus x power b plus x power c, and upper terms are x power a, x power b, and x power c. Now you will see denominator and numerator both are same, so we cancel it out and we got the answer 1. Okay. Okay, now come on to the next one. अब इस क्वेश्चन में आइए बच्चे, it's quite easy question. Okay, just आपको थोड़ा सा फोकस करना है and you will get everything. देखिए इसमें ना आपको सारे स्टेप्स नहीं करने की जरूरत होती, जस्ट गो अहेड विद वन स्टेप। यस खुशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, लास्ट जो टर्म है लास्ट क्वेश्चन में, एक तो ऊपर है एक्स ए पावर है और फिर एक नीचे है, तो वो नीचे वाला एक्स से कहाँ गया? नहीं बच्चे, नीचे वाला ही ऊपर आया है, ये मैं यहाँ से इसको ले गया ऊपर। तो फिर एक उसके ऊपर देखेंगे तो ऊपर ए बाई 1 बाई है, तो ना उसको नहीं करेंगे फिर? नहीं बच्चे, ये 1 तो ये 1 की जगह ही गया है ना, एक्स की पावर 1। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, now come on to this one. Okay, how we can solve it out या how we can find it out, चेक कीजिए कैसे करेंगे हम इसको। सिंपल, देखिए मैं ना जस्ट एक टर्म पे फोकस करूंगा, ओनली फर्स्ट।
Now, if I am taking the LCM, we got x square minus y square upon xy. Just that. And now you will check the next terms. Here you will get y square minus z square upon yz, z square minus x square upon xz. And in the lower reference, you will get x square minus y square upon xy, z square minus y square upon y square z square. And in the last frame, you will get x square minus z square upon x square and z square. Okay, now so you can see first, second, third. देखो यहाँ z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर है, बट वो कैंसिल हो जाए. नेक्स्ट xy with single xy, yz with single yz, xz with single xz. So you are left with xy, yz and xz. So after getting everything, you will get x square, y square and z square as your answer. Sir, is y square minus z square and z square minus y square equal? बच्चे see that what I say. आप पहले फोकस किया करो what I want to say. Z square minus y square, here is x square minus z square. देखो ये दोनों के साइन अपोजिट हैं. That's why they are equal. Sir, बच्चे I will tell. आप मैंने क्या किया इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, तो व्हाट आई गेट y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. नाउ इसमें से नेगेटिव कॉमन लिया, तो व्हाट वी गेट z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. तो इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. गॉट इट? सर ये जो आंसर आया, ये सर इनकी पावर माइनस नहीं होगी? बच्चे ये क्यों, कहां से? अच्छा एक सर, बताओ, क्योंकि- एक मिनट मेरे को बताओ. 1 upon 1 upon 4, इसका आंसर क्या होगा? टेल मी, इसका आंसर क्या होगा जो मैंने अभी लिखा? सर 4. तो फिर मैंने भी तो वही किया बच्चे, चेक करो. ये देखो, आप जिस टर्म को देख रहे हो, देखो क्या हुआ, a अपॉन b कैंसिल, c अपॉन d, जस्ट आपके पास d टर्म बची ना, तो ये ऊपर ही चली जाएगी बच्चे. ओके सर. यस प्रियांशी. So when you converted from the first step to the second step, which formula did you use? Yes, first. So when you were converting the first step to the second step, which formula did you use? No formula. I am just taking the LCM, nothing else. Check it. I am just taking the LCM. Okay. सर Yes, बच्चे carry on. सर फर्स्ट टर्म में जो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, सॉरी सर, जो हमारा जो डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर. सर मैं इसको अगर सॉल्व कर रही हूँ तो मेरे पास ऊपर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर आ रहा है सर, लेकिन आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ रहा है इसे ओपन करने पे. किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो बच्चे? सर इसी क्वेश्चन की बात करिए, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म है जो हमारा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर. ओके. हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है हमसे, वो देखिए क्या था. बिल्कुल वेरी गुड बच्चे, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है. चेक इट. देखिए ये तो हमने कैंसिल कर दिए थे, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग साइन. यहाँ पे आपके पास ना एक ऐसे मिस्टेक्स होती है. यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था बच्चे, यहाँ क्या आना था? बिल्कुल आप एग्जैक्टली राइट हो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना था. ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है.
तो इसको नीटली सॉल्व करते हैं, चेक इट। व्हाट वी कैन डू, हमने एलसीएम लिया बच्चे, तो वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन वाई जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, एंड द नेक्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। चेक कीजिएगा बच्चे अब क्या हो रहा है, सी दैट वन। जब मैं यहां से नेगेटिव कॉमन करूंगा तो वी गॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब मैं यहां से नेगेटिव कॉमन करूंगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सेकंड नेगेटिव, जब मैं यहां से नेगेटिव कॉमन करूंगा तो वी गॉट दिस 3 नेगेटिव। नाउ चेक इट व्हाट इज गोइंग ऑन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर and z square minus x square. Now they will cancel. Now see that xy single x and single y, yz single y and single z, zx single x and single z. Now you will see what is left, x and x, x square. That means this quantity left 1 upon 1 minus x square y square and z square, and ultimately at the end we got minus x square y square and z square. This is your answer at the end. Excuse me sir. Yes सर इससे प्रीवियस क्वेश्चन पे आएंगे एक बढ़िया। सर इसके अंदर हम लोग ये तरीका यूज नहीं कर सकते हैं कि जैसे अभी हमारे पास ये लिखा हुआ है, नो डिस्कशन। ठीक, अब ये बताओ आपको इसमें क्या दिक्कत हुई? सर इस वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले में सर मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको एकदम सिंपली सॉल्व किया जा सकता है। जो x की जितनी भी मतलब पावर्स दे रखी है ना, उनको आप पहले ही कट कर दो। कैसे? सर जैसे x b माइनस का a है और c माइनस का a है, तो सर उसके फिर प्लस 1/1 प्लस x a माइनस का b है, तो फिर a से माइनस a कट कर दो। ये कौन सा नया रूल चला रहे हो भाई? सर अगर ऐसे कर दिया तो फिर हमारे बच्चे का ऊपर की तरफ। एक मिनट टेल मी, हम क्या लिखें इसको? फर्स्ट वाले को बताओ क्या लिखें। सर आप ऊपर ही कट कर दीजिए, जैसे x b माइनस का a है और प्लस a c माइनस का a है, तो जो x a माइनस का b है प्लस उसके बाद प्लस 1 वाले में मिडिल वाले के अंदर, तो उसमें प्लस a से माइनस a कट कर दीजिए फर्स्ट वाले के अंदर कोई भी एक। ये तो है ही दोनों माइनस। यस सर, कोई भी एक कर दीजिए आप। ऐसे कैसे कट कर दें इसको? इसको ऐसे कैसे कट कर सकते? ऐसे कैसे? सर 2 मिनट। हाँ सर आपने हमको एक वो बताया था ना कि मतलब क्या? अगर किसी भी मतलब टर्म आपका जो है उसका डिजिट आपका सेम है, जैसे 2 है 3 है 4 है, उसकी पावर अलग है पर नीचे वाला सेम है, जैसे 2 है और 2 है, 2 की पावर अलग है। बच्चे फिर आप क्या कर रहे हो? मैंने वो आपको कब बताया था? जब उनको मल्टीप्लाई करना हो। यहाँ पे एडिशन है, वो रूल तब था जब आपके पास बेस सेम हो, पावर मस्ट बी एडेड। और इसमें अगर आप उस रूल को भी लगाओगे तो भी कुछ कट नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। जब भी आप क्वेश्चन करो ना, पहले जस्ट देखा करो, ठीक, कि व्हाट वी आर डूइंग। नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने कुछ भी, ठीक है? आप अगर गलत परसेप्शन के साथ जाओगे तो प्रॉब्लम में आओगे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब इसी क्वेश्चंस को एक और वे में लेते हैं बच्चे, इसी टाइप के क्वेश्चंस को, ओके? एंड व्हाट वी आर सॉल्विंग इट एंड हाउ वी आर सॉल्विंग इट, sorry, how we are solving this kind of questions.
ये मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, अब भी डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड सी दैट if a power m dot a power n is equal to a power m into n, then what is the value of this m into n minus 2 plus n into m minus 2? We want to find out the value of this question. Okay, what is given to you? A power m dot multiplication a power n is equal to a power mn. Then what is the value of m times n minus 2 plus n times m minus 2? We want to find out this value and how we can solve this questions. और इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना। मैं कोई ऑप्शंस नहीं दे रहा बच्चे। वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छे बच्चे। We are dealing with algebra of power and exponents. Vrinder, no, check it again. Very good, Naksh. लीजिए, हाउ वी कैन सॉल्व इट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। यहां पे वो फॉर्मेट लगेगा a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर mn। तो वी कैन राइट इट एज m प्लस n इज इक्वल टू mn। ये आपके रिलेशन का पार्ट होगा। ओके, नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस वन। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट mn माइनस 2m plus mn minus 2n. Now mn and mn, it becomes 2 times mn. Take minus 2 common, it becomes m plus n. Now from this concept, you know that m plus n is equal to mn. Cancel it and this becomes 0. ओके तो इस तरह से करना है। ये भी हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या आप ऐसा कह लीजिए कि हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। अभी मैं आपको 20 सेकेंड्स दूंगा ओनली, बी रेडी। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स? What is the product of these two terms? आप बोल सकते हैं जैसे ही आपको फाइंड आउट करने को मिले। 2x plus 4. 2x plus 4. Okay, okay. Yes, Lakshmi. Sir, I'm having doubt in the previous question. Sir, 2x plus 4. In this question. Yes, sir, same. Yes, yes. Lakshmi. No, sir. 2x plus 4. 2x plus 4. Please explain it again, sir. What is your doubt? Tell me. Sir, 2x plus 4. 2x plus 4. The final step.
नहीं बच्चे, check it. First of all, tell me, I'm creating a relation between m and n. यहाँ तक कोई doubt है? No, sir. Okay. Now what we have done, we have just multiplied the terms. After multiplication, we got this one. Okay. Now what I have done after that, mn, we got 2mn, and from this we take minus 2 as common, it will left with m plus n. Now we put the value of m plus 1, m plus n, which is again mn. So 2mn minus 2mn, it is equal to 0. Okay, sir. ओके हाँ जी बच्चे, आपने जितना टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाया बच्चे, उतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। यू देखो क्या होता है, यू वेरी वेल नो इट कि इसके फैक्टर्स क्या होने वाले, x square, x minus 2 and x plus 2। बड़ा सिंपल सा, कैंसिल इट आउट। ओके, 2 यहां से कॉमन आएगा, रिमेनिंग इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट डाउन द आंसर। हमने वहां सॉल्व करके नहीं दिखाना, वी जस्ट ओके हमने जस्ट आंसर पे जाना। चलिए कोई बात नहीं है, तो वी आर फाइंडिंग दिस वन एज नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। एचसीएफ तो सबको पता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एवरीबॉडी नोज। yes sir. Yes, sir. ओके चलिए, इट इज गिवन टू यू the HCF of 608, 544, 638, 783 and 425 and 476. Options are 32, 29 and 17. Option B 17, 32 and 29. Option C 29, 32 and 17, and option D 32, 17 and 29. सर ये बीच में रेशियो लगाया आपने? No. HCF of this and this. एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। Sir, option A. Okay. How you guess it? Sir, firstly, sir, in first 32 is a common factor. Sir, and so A and D are left, sir, and in the last sir 7. Check it. In first को find out कीजिए, you will get 32. तो 32 means ये दोनों तो गए। Okay. Option B and C are not in our list. अब आपने नेक्स्ट करना है बच्चे कि नेक्स्ट आप कैसे फाइंड आउट करें। So the answer is A. A, definitely A. ओके देखो, जनरली हम सिंगल एचसीएफ या सिंगल एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन he provides us 3 HCF and 3 LCM, 3 HCF और 3 LCM, so that हमारा टाइम लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और कुछ नहीं था इस क्वेश्चंस में, जस्ट वैल्यू ऑफ टाइम, और कुछ नहीं। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक सिंपल अलजेब्रा, x minus 1 upon x minus 2 is equal to 2 times 1 upon x minus 2. What is the value of x? 1, 2, 3 या none? Sir, 2 minus 1 upon x minus 2 or 2 times? No, 2 minus. Sir, 2. Sir, it's 2. बस है ना, सिंपल क्वेश्चन। This is 2. Sir, 2. किसी को हाँ, किसी को डाउट तो नहीं हुआ ना हैवी क्वेश्चन में? sir. No, sir. अच्छा, इफ यू टेक द एलसीएम तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। Sir, -1 by x minus 2 Sir, और direct cancel हो जाएगा। ट्रांसपोज हो जाएगा और कैंसिल।
हाँ जी बच्चे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? सर -1 कैंसिल आउट हो by जाएगा -2 मतलब 1/x -2 कैंसिल हो जाएगा, x minus 2 कट हो x = 2। ये मैंने चलते चलते एक इजी सा दे दिया, मैंने कहा चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बताइए अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, नाउ सॉल्व इट, नाउ सॉल्व इट इफ 2 is in the multiplied form. सर x भी है सिर्फ 2? Yes, yes, yes. 2 is multiplied with 1 upon x minus 2. सर 3 सर तब भी वही आएगा ना, क्योंकि Sir, 3 and minus 1. सर 3 आंसर इज 3 3 and minus 1. सर 3 x = 3। समझ रहे हो? Sir, what was the question? सर इधर करना कैसे, क्वेश्चन क्या दिया था आपने? Question is this. अच्छा, मेरे से दोनों तरफ ही प्रोडक्ट है। This is the question. Okay? सर 3 and minus 1. अभी देखते हैं बच्चे। X equal to 3 and minus 1. तो you will get x is equal to 3 and x is equal to -1. यस सर। तो इसमें हमारे ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू आएगी बच्चे? 3. सर थर्ड ऑप्शन 3 थर्ड आएगी। 3 sir. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, और ये आपने बड़ी जल्दी में सॉल्व करना है। इफ x³, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। What he said, what is the value of f1? F of -1 divided by 2. 5, 2, 0 and -2. This is A, B, C and D. अभी आपका पोल शुरू होगा, you have to fill in the poll. आदित्य, क्वेश्चन पे फोकस किया करो, ये टैटू मत लगाया करो बदल बदल के। Very simple question. कुछ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व नहीं करने होते। देखो, when you put 1, you will get 1 -1 +1 -1. It is equal to 0. When you put -1, you will get -1 -1. इसमें -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा और इसमें भी -1 आएगा, तो you will get -4. तो what you will get? 0 -4 divided by 2. कि मैंने कुछ गलत किया है? And check your answer also. Got it? अब जिन्होंने बिना देखे ही 0 कर दिया, they will check it कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। Yes, any doubt from any corner?
नो सर। बच्चे इसमें किसी फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यूज थी, पुट अप कीजिए एंड गॉट द आंसर। सर मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ये वाला क्वेश्चन बच्चे सिंपली क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय f1? दैट मीन इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू पुट 1। तो आपने 1 पुट अप किया, तो 1 पुट अप करेंगे क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1। ये हमारे 9th क्लास में क्वेश्चंस थे, नो फैक्टराइजेशन। ओके, तो कैंसिल किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इंस्टेड ऑफ दिस आपने 0 पुट अप कर दिया। सेकंड वाले में आपने -1 पुट अप किया, यू गॉट -4। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू क्या आ गई, -2। ये आपके इस क्वेश्चन की क्या हुई, वैल्यू हुई। So answer -2 है। यस, -4/2 दैट इज -2। एक चीज चेक कीजिएगा, आज जो आप अभी देखेंगे, यू विल गेट दिस होल पीडीएफ, अभी आपको आएगा, ठीक, टोटल चेकआउट कीजिए। इन दिस होल पीडीएफ यू विल गेट ऑल द टर्म्स। ओके, जो भी हमारे पास अवेलेबल टर्म्स हैं या जो मैंने एक्सप्लेन नहीं भी की, यू विल गेट ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू अलजेब्रा। ओके, इसको एक बार देख लीजिए, इट्स अ मिक्स ऑफ 9th एंड 10th। ओके, जैसे ही आपके पास आएगा, आफ्टर दैट यू विल गेट 40 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन। हाँ, अभी आपको क्या करूंगा मैं, आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा, क्या आएगा, गूगल फॉर्म आएगा। क्वेश्चंस तो आपको मिल चुके हैं अभी, ठीक, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उस गूगल फॉर्म पे फिल कीजिए, यू विल गेट द मार्क्स कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत। सर टिल व्हेन? नहीं, वो आप जब भी आपको टाइम लगे, व्हेन यू गेट द टाइम। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने आज करना है, कल करना है, दैट इज ओपन। ओके, तो जब भी आपको टाइम लगे आप इन 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, बट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास, सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स ले सकें। सर फिर संडे को कर सकते हैं? कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर।